very good morning to my dear students. Students, today I am interacting with the students of class 7th subject English, and the lesson we have chosen today for discussion, that is from poetry section, The Rebel, written by D.G. Enright. Dear students, what D.G. Enright tries to describe in this poem, it is a comparison between a rebel and a sensible person. D.G. Enright tries to describe likes and dislikes, actions of a rebel as compared to a sensible man. How a rebel is different from a sensible person. His likes, his dislikes, his or her actions are totally different when we compare this rebel with a sensible person. The behavior of a rebel is totally incomprehensible and psychologically non-conforming. The behavior of a rebel in the society or in any organization is totally incomprehensible and non-conforming when we compare this rebel with a sensible person. The poet here describes the attitude of some people who revolt against the society. That means the rebel, the people who are rebel, they revolt against the society. They break the social laws. They break the rules and principles of the society. They disturb the discipline of the society. That is D.G. Enright tries to describe here. Who revolt against the society, social order, discipline, and break rules and principles. These people try to introduce the changes they want through their attitude and behavior. What they like. They don't care of discipline, they don't care of principles, they don't care of any social order or social respect, but they try to introduce the changes they like. To satisfy their self-consciousness, they try to introduce those changes as per their likes and dislikes, and these changes they try to introduce with the help of their attitude and their behavior, their actions. So we will discuss, dear students, this poem written by D.G. Enright. So dear students, follow the video and open your textbook, page number 58, and follow this video and understand the lesson from poetry section, The Rebel. रेबेल का माने जो होता है बच्चों, वो होता है बागी, बगावत करने वाला. ये एक बागी इंसान होता है जो ना रूल्स का केयर करता है, ना सोशल ऑर्डर या डिसिप्लिन का केयर करता है. अगर ये किसी इंस्टीट्यूशन में है, इंस्टीट्यूशन के रूल्स का इसको कोई परवाह नहीं होती है. ये सोसाइटी समाज के अंदर हो तो इसको समाज के जो उसूल हैं, जो कवायद और ज़वाबित हैं, उनका कोई ख्याल इसको नहीं होता है. ये अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना मिजाज को सेटिस्फाई करने के लिए, मुतमईन करने के लिए ये कोई भी एक्शन करता है जो इसकी पसंद का हो, जो इसके लायक का हो, जिसको ये पसंद करे. तो इसी के बारे में D.G. Enright का ये कंपैरिजन है, हाउ रिबेल्स इफेक्ट द सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी. अब कहीं पे इनका जो क्यों जरूरी है समाज के अंदर, ये भी इसमें हम देखेंगे कि कहीं पे इसकी भी गुंजाइश है कि D.G. Enright ने कहा है कि सोसाइटी के अंदर ये रिबेल जरूरी है. हालांकि जब हम ये सोचते हैं तो हमें नहीं लगता कि समाज के अंदर इस चीज की जरूरत होगी, लेकिन अगर हम क्रिटिकल थिंग्स को देखेंगे, क्रिटिकली इसको अगर हम देखेंगे, कहीं पे इनकी जरूरत होती है. लेकिन समाज, जहाँ पे समाज के उसूल, जहाँ पे समाज के डिसिप्लिन की बात हो, वहां पे रिबेल होना जो है ये अच्छी बात नहीं है. अब क्रिटिकली अगर इंसान देखे, अगर कहीं पे डेवलपमेंट की बात हो, जहां पे डेवलपमेंट की तरफ कोई क्रिटिकली कोई चीज उठाए, कोई एफर्ट ले, हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव सेंस में है. लेकिन अक्सर जहां पे सोसाइटी के रूल्स को, डिसिप्लिन को इफेक्ट करने के लिए, या अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स और अपने एक्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सेल्फ कंसेंस को सेटिस्फाई करने के लिए बाकी सोसाइटी के सेंसेस जो है उनको तोड़ देना, उनको नुकसान पहुंचाना, रूल्स को ब्रेक करना, ये अच्छी बात नहीं. वहां पे आप ये कह सकते हैं
rebels are not necessary. There is no need of any rebel in the society, in any organization. ठीक है, तो बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे, ट्यूलिप सीरीज बुक 7 और पेज नंबर जो है इसका 58, लेसन द रिबेल फ्रॉम पोएट्री सेक्शन. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. नॉर्मल बात है, अगर हर इंसान छोटे बाल रखता है तो रिबेल क्या काम करता है, जो दूसरे लोगों की अपोजिशन करने के लिए लंबे बाल रखता है. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब बाकी लोगों के सर पे थोड़े से लंबे बाल होते हैं तो रिबेल उसी टाइम अपना सर मंडवाते हैं, तो उसी टाइम छोटे बाल रखता है. दैट मीन्स ये बाकी लोगों के एक्शन की अपोजिशन करता है, बाकी लोगों के एक्शन के एग्निस्ट काम करता है, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके एक्शंस के एग्निस्ट जाता है. When everybody talks during the lessons, the rebel doesn't say a word. जब ये अगर किसी क्लास में डिस्कशन कर रहे हूं, पढ़ रहे हूं, ड्यूरिंग लेसन्स का मतलब ये हो गया कि जब बच्चे पढ़ रहे हो, जब उनकी टीचिंग लर्निंग हो रही हो, उस दौरान अगर बच्चे आपस में कोई डिस्कशन करते हैं, चाहे वो अपने ट्यूटर, अपने फैसिलिटेटर, अपने टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हो या फ्रेंडली डिस्कशन हो रही हो लेसन्स के रिलेटेड, उस टाइम पे रिबेल बिल्कुल साइलेंट रहता है, ये किसी से कोई बात नहीं करता. बट when everybody talks during the lessons, the rebel doesn't say a word. उस टाइम ये मम बिल्कुल साइलेंट रहता है. When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. अब जब सब बच्चे चुप हैं, जब सब लोग बिल्कुल खामोश हैं और ये चाहे अपने टीचर जो इनको पढ़ा रहा है वो सुन रहे हैं, या ये कोई अपना कोई असेसमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल साइलेंट हैं, लेकिन उसी टाइम पे डिस्टरबेंस करने की कोशिश करता है रिबेल. तो यहाँ पे दोनों केसेस में आप देखो कि एक जगह पे हम एक डिसिप्लिन की बात करते हैं, जब हर कोई आदमी छोटे बाल रखना चाहता है, एक अच्छा इंसान रहना चाहता है, एक सेंसिबल पर्सन जिसको हम कहेंगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने की कोशिश करता है, वहीं पे रिबेल लंबे लंबे बाल रखने की कोशिश करता है. जब बाकी लोग थोड़े छोटे बाल रखें, ठीक है, वहां पे उस टाइम पे क्या काम करता है, ये अपना सर मंडवा देता है, बिल्कुल छोटे बाल रखता है, बाल काट देता है. इसी तरीके से जब लेसन पढ़ रहे हो, जब इंटरेक्शन हो रही हो, डिस्कशन हो रही हो अपने ट्यूटर, अपने टीचर के साथ या क्लासमेट के साथ डिस्कशन कर रहे हो बच्चे, उस टाइम पे रिबेल बिल्कुल साइलेंट है, किसी के साथ कोई बात ही नहीं करता है. यहाँ पे ये पता चला कि रिबेल यहाँ पे ठीक नहीं है, कि वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता है. जब अब सब बच्चे साइलेंट हैं, अपने लेसन्स को, या तो वो उनकी असेसमेंट हो रही है, वो उनको कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम दी गई है जिसको उनको सॉल्व करना है, उस टाइम पे वो बिल्कुल साइलेंट है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे रिबेल जो है डिस्टरबेंस करने की कोशिश करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है. यहाँ पे ये पता चला कि रिबेल अच्छा नहीं है. आगे चलें बच्चों. When everybody wears uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. हर कॉलेज, स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन का रूल होता है, नॉर्म होता है, वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म होती है, वर्दी होती है. लेकिन जब सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, उस टाइम पे रिबेल कोई और ड्रेस पहन कर आता है. उस टाइम पे ये अपोजिट एक्शन करता है अपने एटीट्यूड से कि मैं वर्दी नहीं पहनूंगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे वो यूनिफॉर्मिटी का रूल जो है वो उसके एग्निस्ट काम करता है, उस रूल को ब्रेक करता है. अब when everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses subtle. जब अब बाकी लोग अलग तरह के कपड़े पहनकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे एकेडमिक सेशन एंड होने पर कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल नहीं आता है, कॉलेज नहीं आता है, यूनिवर्सिटी नहीं आता, उस टाइम पे जो रिबेल है ये यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है. दैट मीन्स कि ये टोटली अपने एटीट्यूड से, अपने एक्शंस से ये जो है इन रूल्स को ब्रेक कर रहा होता है. जब जरूरत नहीं है तब वो काम करना, जब जरूरत है तब नहीं करना, तो इसका कोई फायदा नहीं है. अगर ये उस टाइम पे ये काम कर लेता है, जब ये काम करना है उस टाइम एप्रिसिएशन मिलती है,
जब उस टाइम पे नहीं किया, उस टाइम पे डांट डपट भेजती पड़ती है, इसलिए रूल्स को ब्रेक किया होता है। लेकिन जब इस चीज की जरूरत ही नहीं है, उस टाइम पे ये वो काम करेगा, उस टाइम इसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, उस टाइम पे इसको डांट पड़ेगी कि आज जरूरत नहीं है, आज ये काम आपने क्यों किया। इसी तरीके से जब आप सेशन क्लोज होने पर अब यूनिफॉर्म पहन कर जाएंगे तो कोई आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। लेकिन जब एकेडमिक सेशन हमारा चल रहा हो, सब बच्चे यूनिफॉर्म में, कोई बच्चा अजीब गरीब किस्म के कपड़े पहन कर आ जाए, उस टाइम पे उस बच्चे को अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, उस टाइम पे उस बच्चे को बेइज्जती पड़ती है, डांट पड़ती है, गुस्सा होते हैं उसके टीचर या स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल की कि ये बच्चा जो है रूल्स को ब्रेक करता है। ये रिबेल का काम। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts a good word for dogs. बच्चों, अगर पेट एनिमल्स रखते हैं, अगर कोई आदमी बात कर रहा होता है, उन्होंने डॉग्स जो हैं वो पेट एनिमल्स रखे हुए हैं, उनको पाल रहे हैं, उनके साथ प्यार करते हैं, उनकी बातें कर रहे हो, वहां पे जो रिबेल है ये बात करता है कैट्स की कि मुझे कैट्स अच्छे लगते हैं, कैट्स इतने खूबसूरत होते हैं। लेकिन जब लोग कैट्स की बात करते हैं उस टाइम ये कहता है मुझे कैट्स अच्छे नहीं लगते, मुझे डॉग्स अच्छे लगते हैं। दैट मीन्स कि ये किसी के साथ, किसी के ओपिनियन के साथ, किसी की एक्सप्रेशन के साथ अपना आप जो है वो हमेशा अपोजिट में रखता है। अपोजिट वर्ड बोलना, अपोजिट एक्शन करना, ये रिबेल का काम है। The rebel, when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes, देखो बच्चों, जब हर कोई आदमी, बारिश पड़ रही है, इट्स रेनिंग, और हर कोई आदमी एंजॉय कर रहा है बारिश को, तो उस टाइम पे रिबेल क्या काम करता है? ये कहता है अफसोस सूरज नहीं निकला, धूप नहीं निकली। ये उस टाइम पे सूरज को तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन जब सब लोग कह रहे होते हैं कितना अच्छा सूरज निकला है, कितनी अच्छी धूप है, कितना अच्छा मौसम है ना, उस टाइम पे अफसोस करता है कि बारिश क्यों नहीं पड़ी, बादल क्यों नहीं आ गए। यहाँ से ये पता चला कि ये किसी के साथ भी किसी टाइम पे भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे वो लोग अच्छे क्यों ना हो, वो लोग राइट ही क्यों ना हो, लेकिन ये हमेशा अपोजिट वर्ड बोलेगा, अपोजिट एक्शन करेगा। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. देखो बच्चों, जब हर कोई बच्चा मीटिंग मीन्स अगर स्कूल जाता है, ठीक है, वहां पे कोई मीट है, वहां पे क्लासेस हैं, व्हाटसोएवर, तो ये उस टाइम पे घर में बैठ जाता है, ये घर में बैठकर किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब बाकी लोग घर में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उस टाइम पे ये आदमी मीटिंग में चला जाता है जब इसकी जरूरत ही नहीं। ठीक है, when the rebel goes to the meeting, when everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. देखो बच्चों, जब अगर रिबेल से कोई चीज देना उसको चाहता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई उसकी हेल्प करना चाहता है, वो कहता है नो थैंक यू, नहीं मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। ठीक है, अब जब बाकी लोग कह रहे हैं हाँ यस प्लीज, हाँ प्लीज दीजिए, ठीक है, यानी किसी से हेल्प लेते हैं या कोई चीज उनको देना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, इस तरीके से देना चाहता है, फ्रेंडशिप सर्कल में, क्लासमेट्स वगैरह, ठीक है, उस टाइम पे बाकी लोग कहते हैं यस थैंक यू, ठीक है, हाँ यस प्लीज, तो ये उस टाइम कहता है नो थैंक यू, नहीं मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। ठीक है, अब जब बाकी लोग कहते हैं नो थैंक यू, नहीं हमें नहीं चाहिए, शुक्रिया, ठीक है, उस टाइम ये कहता है यस प्लीज, नहीं मुझे दीजिए, क्योंकि बाकी लोग नहीं ले रहे, मुझे चाहिए। ठीक है, जब बाकी लोग सब कह रहे हैं हाँ लाइए, ठीक है, उस टाइम ये कहता है नहीं, तो दैट मीन्स कि ये हमेशा जो एक कलेक्टिव कॉन्सेंस है उसकी अपोजिशन करने की कोशिश करता है, उसके अपोजिट अपने एक्शंस, अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करता है। The rebel says, yes please, it is very good that we have rebels. You may not find it very good to be a rebel, to be one. ठीक है, DJ and right यहाँ पे लास्ट पे लाइन्स में कहता है it's very good to have rebels.
ये भी ठीक है, रिबेल होने चाहिए, लेकिन वहीं पर साथ में ये भी कहा है यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यानी आप रिबेल बनना नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आप रिबेल बने, आपको ये पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोसाइटी में रिबेल हैं, ठीक है, लेकिन पसंद कोई नहीं करता रिबेल होना, ये क्या बात है, क्या वजह है? तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ अगर रिबेल होना सोसाइटी में जरूरी है, आप अपने ओपिनियन, आपने अगर हम क्लास में होते तो हम इसको डिस्कस करते, एक ग्रुप डिस्कशन होती कि रिबेल होना जरूरी है, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे बच्चों, अगर मेरी सजेशन आप जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में आपको बताया, अगर सोसाइटी की डेवलपमेंट पे कहीं पे कोई क्रिटिकली कोई चीज बोलने की जरूरत है, जहाँ पे सोसाइटी के कोलेक्टिव कंसेंस और कोलेक्टिव बेनिफिट की बात होगी, वहां पे अगर कोई दो किसी जो सोसाइटी के रूल्स या सोसाइटी के खिलाफ उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करने के लिए कोई आदमी काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ अगर बोलना हो तो वहां पे एक रिबेल होना जरूरी है। लेकिन जहां पे सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने की बात हो, जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और प्रिंसिपल्स को ब्रेक करने की बात हो, जहां सोसाइटी में एक आदमी अकेला अपोजिशन, हर एक्शन अपोजिट, हर वर्ड अपोजिट, हर तरह का उसका एटीट्यूड जो है वो अपोजिट, तो वहां पे बच्चों रिबेल होना बहुत बुरी बात है। जिस तरीके से रिबेल का लेसन के दौरान अपोजिशन करना, पढ़ने के दौरान अपोजिशन करना, या यूनिफॉर्म पहनने में जो है वो रूल्स ब्रेक करना, ठीक है, जहां पे किसी कंपनी में बैठे तो वहां पे उन कंपनी के जो बाकी लोग बात कर रहे हैं उनके अपोजिट बात करना, ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे यही चीज है कि रिबेल होना अच्छी बात नहीं है। That's all for today, and tomorrow we will discuss another lesson. Thank you बेटा।